पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मेरे कजिन आतिफ अपने बच्चे अहमद और अब्दुल्ला के साथ नॉर्वे आ पहुंचे। हम गेरांगर की तरफ निकले और शाम को हमने विन्ये कैंपिंग में विश्रांति ली। इस एपिसोड में हम गेरांगर फ्योर्ड की सवारी करके हेलिसिल्स में कुछ दोस्तों को मिलकर रुंदे की तरफ जाएंगे। तो आइए और हमारे नॉर्वे कैंपरवैन ट्रिप का व्लॉग एंजॉय कीजिए। इस व्लॉग के द्वारा मैं रूट प्लानिंग, एक्सपेंसेस और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा जिससे आपके सफ़र में भी काफ़ी मदद होगी। हम सब सुबह रेडी हो गए और नाश्ता करके अगले एक्टिविटी के लिए निकल पड़े। और हमारा विन्ये कैंपिंग का सफ़र ख़त्म हो रहा है। आज जुलाई 4 है और अब हम अगले डेस्टिनेशन पर जाने तैयार हो रहे हैं। And what's our next destination? क्या कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे हेलिसिल जाएंगे। पहले फ्योर्ड की टूर होगी, फिर हेलिसिल जाएंगे। And what about that thing you told us, the ferry thing? वो अब होगी 4 बजे। Okay. 4 बजे। उसके बाद हम रुंदे चले जाएंगे। रुंदे, are we going to get the same, यानी same type of camping site मिलने वाला है? Hopefully मिलना तो चाहिए। Okay. So shall we now? Yes, we should. हमारा पहला प्लान था गेरांगर फ्योर्ड में कायाकिंग करने का। हमने गेरांगर कायाक सेंटर कंपनी चूज की जो काफ़ी प्रोफेशनल थे। If you can grab them, you have to go up and forward at the same time. I want to help my friend. I got it. हम लोग आए अब गेरांगर कायाकिंग सेंटर में। 2 टैंडम कायाक्स लेकर आतिफ, मैं और बच्चे जाएंगे। पर टैंडम कायाक के घंटे भर का कॉस्ट कुछ 65 यूरो था। Down and out to the sides. You will see if I have my knees in here, I can control the kayak and have much more stability. Okay. And then if you're sitting on the back, you too, you're gonna be in charge of steering the kayak using the rudder buttons in the back. Okay. So I have 2 pedals, one on each side. Push it right and keep it like this. Yeah. अब्दुल्ला और मेरी टीम थी और आतिफ और अहमद की। Thank you. Enjoy. Okay, Come. you wanna go backward? And then you start going. Okay, which way? Okay, we're gonna go out now. Okay. Yeah. Okay, let's in sync. Yeah, sure. Okay. You give the call left. Okay, ready? Yeah, ready. Okay, left, Yeah. right, Nice. left, right. Okay, let's catch up with them now. Okay. Okay, now we're going straight. Yeah, Are you using the thing in the back? I am, sir. गेरांगर फ्योर्ड में कायाक करते समय बस ध्यान देना है क्लिफ से दूर रहना, क्योंकि वहाँ रॉकफॉल की संभावना ज़्यादा होती है। So this is one of the areas we should stay away from. और ये गेरांगर फ्योर्ड है। यहाँ पे बड़े बड़े क्रूज शिप्स भी आते हैं। इसका नाम है कोंग हराल्ड। Paddle left, only left, yeah, only left. और ये बड़े बोट्स ने वेव्स छोड़े तो हमें ऊपर नीचे किया। थोड़ा डर लगता है, उसमें परपेंडिकुलर होना पड़ता है, बाकी सब ठीक है। 1 घंटा बहुत ज़्यादा होगा। Time. But now I think it's a long time because paddling और वो सब में बहुत मेहनत है। Of course, मज़ा आ रहा है। Especially and then एक दफ़ा waves आती है, it becomes even more difficult because you need to wait there and वो सब करके रुक के फिर निकलना पड़ता है। अब्दुल्ला कैसे लग रहा है? अहमद आपको कैसे लग रहा है एक्सपीरियंस? I like kayaking, so I don't mind. नाइस। अब्दुल्ला I'm enjoying. Yes, क्या लग रहा है आपको? Your 2 cents? it's amazing. बस। इसके पीछे बैकग्राउंड के पीछे बहुत बुरे कमेंटेटर्स हैं ये लोग, तो अब से मैं ही करूँगा कमेंट्री। और 1 घंटे की कायाकिंग हो गई। अब हम पार्क कर रहे हैं And you're not recording that for sure. और इन 2 लोगों को बाहर निकाल दो। Yeah, you can do one more stroke. I just have to come up, right? Okay. Yeah. So wait. Two hands on the kayak, and you will sit on the back. This is the problem because my this thing is stuck. Ahmed, grab your shoulder strap. No, wait. What thing is stuck? Don't record me. Shut up. What thing is stuck? You want me to pull? No, don't pull. Because I have No, a hold stick his bag. life jacket. Ahmed, hold his life I jacket. have a stick bag. That's the problem. This is not gonna yank it. Atif. I'm just gonna hold it. Not gonna yank it. He's just No. holding. Do I get my legs straight or No, bend them. Bend them. Can you bend them? Can you put them back ये up? वाला bend नहीं हो रहा ना। Okay, then you have to sit on the back. That's the minimum. We're gonna have to chainsaw this kayak.
minutes. Can I get this off? थोड़े टाइम बाद पता चलेगा। Guys, अगर आतिफ पानी में गया तो कितना मज़ा आएगा ना। No, I'm not stuck. आतिफ सही सलामत कायाक से बाहर निकले, बच्चों ने और हमने काफ़ी मज़ा किया। मैं ये एक्टिविटी इस फ्योर्ड में हाईली रेकमेंड करूँगा। फिर हमने कार फेरी ली जो हमें हेलिसिल्ट ले जाने वाली थी। Straight in? Okay. All right, Sajid. Got this. उधर लेफ्ट में ध्यान देना ऊपर। It's your seat belt. Yeah. Stop. Thank you. Looks nice. इस फेरी का कॉस्ट कुछ 200 यूरोज है, पर इन नज़ारों के लिए ये टोटली वर्थ है। कहाँ पर हो सब लोग, आ जाओ। Boys, Abdallah. अब्दुल्ला यो क्विक। ठीक है, अब हम घूमते जाएंगे। घूमते जाओ। All right. All right. All right. There we are. Hello. गेरांगर फ्योर्ड्स में आपको कुछ फेमस वाटरफॉल्स देखने मिलेंगे, जैसे कि द सीव सिस्टरने, द सेवन सिस्टर्स, फ्रियरेन, द सूटर और ब्रूदेस्ल्योरिथ, द ब्राइडल वेल। नॉर्वे के फ्योर्ड्स में ट्रोल्स के बारे में अलग अलग कहानियां सुनने मिलेंगी और गेरांगर में ट्रोल्स जैसे फीचर्स भी देखने मिलेंगे। गेरांगर फ्योर्ड की सवारी के बाद हम पहुंचे हेलिसिल्ट में। ये शहर मिशन इम्पॉसिबल मूवी में टॉम क्रूज के बाइक जंप के लिए काफी फेमस है। और अब बोट डॉक करने जा रही है हेलिसिल्ट में। थोड़े टाइम में हम बर्डमैन फार्म पे जाएंगे। मार्गरेटा को मिलेंगे, ईदा और एंटवान भी वहाँ पर है, और आतिफ को मिलाऊंगा, बच्चों को मिलाऊंगा, और फिर हम निकलेंगे रुंदे की तरफ, जो कि नॉर्वे के वेस्टर्न मोस्ट कोस्ट के आइल्स है, और वहीं पर आज रात को हम कैंप करेंगे। जगह का नाम, हम कहाँ से चले थे, अब हम किस तरफ से जा रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं। हम ओस्लो से शुरू किए। हम पहला हमारा स्टॉप था, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, क्या था उसका नाम? गेरांगर। लेफ्ट राइट? शायद लेफ्ट बंद रहेगा। ओके। नहीं, हाँ लेफ्ट नहीं, सीधा सीधा। फिर अभी वहाँ से निकल के अभी हम जा रहे हैं। आराम से चलना, लोग भी चलते हैं। ये क्या नाम है जगह का? अब हम जा रहे हैं हेलिसिल्ट, बस थोड़ा दोस्तों को हाई कह के फिर हम निकलेंगे रुंदे की तरफ। So रुंदे is what? रुंदे आर द आइल्स इन नॉर्वे, द वेस्टर्न मोस्ट कोस्ट। और ये कितनी देर का ड्राइव है, कितने किलोमीटर्स? ये बस 2.5 घंटे का ड्राइव है। मैं यहाँ से राइट ले रहा हूँ? नहीं, सीधा। You mean हाँ, that way, right? यहाँ से लेफ्ट ले सकते हो आप। क्या आपको रास्ता पता है कि मुझे GPS लगा? नहीं, नो एंट्री, राइट। You can't do that last minute. Should have seen his face. I looked at him and he was staring at me back. No, he was like this. He got scared. He was like, "Yeah, I'm running the." Yeah, I thought as much. मुझे लगा कि साजिद ने कुछ तो गड़बड़ किया है। कोई बात नहीं, मुझे लगा वहाँ से रास्ता था, बट कभी Okay, now ऊपर नहीं जा रहे, हम नीचे जा रहे हैं। हम अभी नीचे की क्योंकि ऊपर नीचे की तरफ। और हम आ गए हेलिसिल्ट, और इतना प्यारा दिन मैं कभी यहाँ नहीं आया हूँ, एटलीस्ट रास्ते से। जंप करते वक्त अच्छे दिन रहे, लेकिन आज तो ड्राइव करते वक्त इतना सुंदर दिन है। यहाँ आकर हमेशा ही स्पेशल लगता है, क्योंकि मार्टिन और मार्गरेटा ने हमेशा हमें बच्चों की तरह संभाला यहाँ पर, और अब मार्टिन नहीं रहे तो थोड़ी कमी ज़रूर महसूस होती है, बट
उनकी जो भी एनर्जी थी, जो भी उन्होंने हमें सिखाया, जितना प्यार दिया, वो हम ज़रूर दुनिया में फैलाते जाएंगे। बहुत ही प्यारा घर बना था मैंने, इसे कहते हैं द बर्डमैन फार्म, द जेटमैन फार्म। ये सारी मार्टिन की कारागिरी है। उन्हें वुडवर्क बहुत ही ज़्यादा पसंद था। द बर्डमैन फार्म में हमें मार्गरेटा, ईदा और एंटवान ने वेलकम किया, जो मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं। He's a treat. He's a treat. Too far. India, so you don't know how the Indian culture works. मार्गरेटा ने आतिफ को उनके लेट पति मार्टिन के वर्कशॉप की टूर भी दी। हमने सबको अलविदा कहा और हमारी शाम की डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़े। इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या, आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे कोई जोर नहीं है, मैं क्या करूं, आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं, ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। हेलिसिल से रुंदे 114 किलोमीटर की दूरी पर है, लगभग 2 घंटे की ड्राइव। आतिफ ने बच्चों को पिज़्ज़ा प्रॉमिस किया था, तो हमने बीच रास्ते में इमर्स पिज़्ज़ा पर ब्रेक लिया। आतिफ ने अरबिक भाषा बोलकर उनका दिल जीत लिया और बदले में हमें फ्री चिकन और पिज़्ज़ा सॉसेस मिले। यहाँ पर टनल का काम चल रहा है, थोड़ा डिले हो गया। वो शाम हमने रोरबुदा हीरोइक किस्ट कैंप में बिताई, जो रुंदे से कुछ आधे घंटे की दूरी पर है। पूरी की पूरी शिप खड़ी हुई है। ये जगह मुझे ईदा ने रेकमेंड की थी और वाकई ही बहुत ही बेहतरीन शाम रही। नज़ारे बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह, दिल का सुकून, मस्त काम। सच्ची में बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक इतनी शांति है यहाँ पे। कभी कभी आई थिंक बम्बई में या शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, दिमाग की शांति। और हवा भी एकदम अलग लग रही है यहाँ पे। हम अभी रुंदे बस 10 मिनट की दूरी पर ही है यहाँ से, तो कल सुबह जल्दी उठकर वहाँ जाएंगे। पहले हम वहाँ कैंप करने वाले थे, लेकिन फिर सोचा ये काफ़ी अच्छा नज़ारा था तो यहाँ रुक गए। बच्चे ऑलरेडी सो गए और हम दोनों खा पी के ऐश कर रहे हैं। अगले व्लॉग में देखिए हमारे रुंदे की सैर और फिर अंदाज़ नेस की ट्रिप।